Hello. Hello. Sir, am I audible to you? Yeah, you are audible. Am I? Yes, sir. Yes. So, good morning, dear all participants. So, today is the first session of day 4. So, we have a speaker for today's session, Mr. Ishwar Raut, sir. I'll introduce first. He is working at the Harman Finochem Limited at Aurangabad and having, sir, 9 years of experience uh, in the research and development, also in formulation development. They know very well about pilot plant techniques and what are the documentation required for to prepare in R&D department and formulation development. So sir, having a good knowledge and experience and expertise in preparation of some documentation related to the R&D department. So hope you enjoyed today's session with sirs enlightening our knowledge to you, student. So I request you, Mr. Ishwar Raut, sir, please start the session. I'll share the PPT now. Okay. Hello. Hello. Sir, is it visible a PPT? Not yet. No. Sir, please let me know when the PPT is here. Yeah, yeah. Okay. Till that time, I will just introduce myself with respect to my work. Good morning, all of you. Myself, Ishwar Raut. I'm working as a scientist in Harman Kardon Limited from the last 4 years almost here. So I have 9+ years of experience in the formulation development of solid oral, liquid oral, uh, for the US Europe market and also for the raw and Canada market. So basically, before going what exactly the development, how the product is getting developed in the industry, we will just have overlook over the other departments, other uh, functional teams, which are the supporting departments in the research and development. So basically research and development में ऐसा होता है कि it is related to raw material synthesis, or we can say that it is related to excipient synthesis, or we can say that result development. Uh, so in the raw material synthesis, whatever the APIs, active pharmaceutical ingredients we are using, active invoice for the formulation development or for the tablet preparation or for the other dosage form preparations. That is also a part of research and development, excipient development. Rather than these, other departments are like production, quality assurance, then packaging. Then in particular R&D research and development, there are cross-functional teams like analytical development department, then development quality assurance, then regulatory affairs, then intellectual property rights IPR department, then project management department, then purchase department, packaging development department.
So every department has their roles fixed in the industry. So basically, uh, during this session, all the departments, whatever the activities done by them, we are going to overlook here. So actually, the topic is very vast, but we will just have look over the important points here right now. So basically, जब हमारे पास हमारा ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारा मैनेजमेंट हमें एक मॉलिक्यूल देता है डेवलपमेंट करने के लिए, तो उस मॉलिक्यूल का जो भी डोसेज फॉर्म हमें बनाना है या फिर ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, तो वो कैसे होता है यहाँ पे हम देखेंगे. सो बेसिकली द कंटेंट्स आर लिटरेचर सर्वे. तो हम लिटरेचर सर्वे में देखेंगे कि व्हाट आर द साइट्स वी यूज फॉर द डेवलपमेंट्स और गोस for the development which site we use, then other related sites like the patent sites, then other book references which we take for the development. Okay, then after API sourcing, तो API sourcing में जो रॉ मटेरियल हमें डेवलपमेंट के लिए लगने वाला है, तो वो उसका प्रोक्योरमेंट हम कैसे करते हैं, कौन से बेसिस पे करते हैं, या फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है प्रायर टू डेवलपमेंट, हम कैसे उसको इवेल्युएट करते हैं, और इवेल्युएशन करने के बाद उसका प्रोक्योरमेंट कैसे करते हैं. ठीक है. देन आफ्टर प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में हमने अपना इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बुक में लैकमन लिबरमन में आपने देखा होगा, जो फाइनल ईयर के बंदे होंगे या फिर जो एमफार्म के बच्चे हैं, उन्होंने ये देखा होगा ड्यूरिंग देयर थीसिस वगैरह. तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में एक्चुअली जो भी हम डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो जो भी आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, दैट इज कंपेटेबल विथ योर एपीआई और नॉट, इट हैज टू बी स्टडीड हियर. सो डिफरेंट स्पेस कंडीशंस जो रहती है, जैसे कि हीट, ह्यूमिडिटी, देन एसिड कंडीशन, बेसिक कंडीशन, तो उसमें अपना रॉ मटेरियल हो या फिर ड्रग प्रोडक्ट हो, उसको हम रखते हैं वो पर्टिकुलर कंडीशन में, और वो पर्टिकुलर कंडीशन में रखने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम की पीरियड के बाद हम उसको एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि वो बिहेव कैसे कर रहा है. मतलब से फॉर एग्जांपल आपका एपीआई और रॉ मटेरियल, से फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है जैसे कि पैरासिटामोल है, या फिर उसके साथ में हम पोविडॉन यूज कर रहे हैं बाइंडर, या फिर रॉ मटेरियल में लैक्टोज ले रहे हैं या एमसीसी ले रहे हैं, तो दैट इज कंपेटेबल विथ योर एपीआई और नॉट. This study is done here in the pre-formulation study. So after that, हम एक्सिपेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं फॉर द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट. एक्सिपेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं, टूलिंग जो लगता है हमें कॉम्प्रेशन करने के लिए, या तो वो टूलिंग कैसे हम डिसाइड करते हैं. देन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट ट्रायल. अभी प्रायर टू डेवलपमेंट ट्रायल इनिशिएशन जो भी चीजें होती है, जैसे कि आपका डेवलपमेंट इनिशिएट करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की जरूरत होती है. अगर एपीआई हम आउट ऑफ इंडिया बुला रहे, बाहर देश से बुला रहे, तो हमें उसका वो प्रोक्योरमेंट करने के लिए एपीआई इंपोर्ट की लाइसेंस की जरूरत होती है. या फिर आरएलडी, हम मतलब रेफरेंस लिस्टेड ड्रग जो रहते हैं आरएलडी, या फिर हम बोल सकते हैं रेफरेंस प्रोडक्ट, जिसको देख के हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो वो प्रोडक्ट बाहर से बुलाने के लिए भी हमें आरएलडी इंपोर्ट का लाइसेंस वगैरह लगते हैं, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे. देन आफ्टर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट ट्रायल हम कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं, या फिर हम ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम वो ड्राई ग्रेनुलेशन है, वेट ग्रेनुलेशन है, या फिर आपका डायरेक्ट कॉम्प्रेशन है, या फिर अदर डोसेज फॉर्म के लिए अदर टेक्नोलॉजी जो भी यूज करेंगे हम, तो वो कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट कैसे करते हैं, एक हम यहाँ पे ओवरव्यू करेंगे. उसके बाद में हम स्टेबिलिटी स्टडी, मतलब एक प्रोडक्ट आपका डेवलप हो गया, तो डेवलप होने के बाद हम स्टेबिलिटी स्टडी में उसको कैसे चार्ज करेंगे, या फिर कंडीशंस क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या क्या क्या पर्टिकुलर कंडीशंस एज पर आईसीएच गाइडलाइन जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उसको हम रेफरेंस में रखते हुए वो प्रोडक्ट को हम स्टेबिलिटी में लोड करेंगे. देन आफ्टर दैट हम स्केल अप बैचेस, मतलब जो हमने आरएनडी में डेवलपमेंट किया है, वो पर्टिकुलर बैच को हम लार्ज स्केल पे कैसे ले सकते हैं, मतलब ट्रांसफरिंग अवर स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी टू द लार्ज स्केल. मतलब जो भी हम डेवलपमेंट हमने यहाँ पे किया है स्मॉल स्केल पे, उसको हम लार्ज स्केल पे कैसे लेके जाते हैं. उसमें भी अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिपार्टमेंट जो रहता है, वो मतलब दैट इज द मीडिएटर, वो
यूजफुल डिपार्टमेंट है उसमें कि उनका जो काम रहता है वो उसमें आ जाएगा। मतलब इंडिविजुअली हर एक डिपार्टमेंट का जो वर्किंग है अपन साइड बाय साइड देखेंगे कि हमारा हमारा वर्किंग कैसा है क्या है, और जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स है हमारी उनकी मदद हमें हमको ड्यूरिंग डेवलपमेंट या फिर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, या फिर कैसे कैसे वो रोल प्ले कर। ठीक है। देन जो भी एग्जिबिट बैचेस थे प्रायर टू फाइलिंग या फिर प्रायर टू सबमिशन ऑफ डाटा, मतलब एक आध रेगुलेटरी पर्टिकुलर रेगुलेटरी मार्केट के लिए हम काम करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएस के लिए काम करें या फिर यूरोप के लिए काम करें या फिर डोमेस्टिक के लिए काम करते हैं, तो प्रायर टू दैट एग्जिबिट बैचेस वगैरह होती है। जो कमर एग्जिबिट बैचेस होती है उसमें बायोइक्विवेलेंस स्टडी होती है। तो बायोइक्विवेलेंस स्टडी कैसे होती है, क्या क्राइटेरिया है उसके, तो बायोइक्विवेलेंस स्टडी में क्या क्या पैरामीटर्स देखे जाते हैं एग्जिबिट बैचेस में, पैसेज वगैरह सिलेक्शन वगैरह हम कैसे करते हैं क्या करते हैं। ठीक है। देन आफ्टर द डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें लगते हैं फॉर दी डेवलपमेंट, या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड है फॉर द सबमिशन पर्पजेस, या फिर बैच लेने के लिए जो भी हमें लगता है वो डॉक्यूमेंट्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। बाद में जो सबमिशन होता है हमारा, मतलब सबमिशन इन द सेंस एक प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद उसकी सब टेस्ट पासिस, मतलब बायोइक्विवेलेंटली कंपैरिजन होने के बाद, वो रेफरेंस प्रोडक्ट से मैच होने के बाद, स्टेबिलिटी वगैरह उसका सब ओके आने के बाद हम उसको सबमिशन कैसे करते हैं, मतलब हमारा एक सपोर्टिंग डिपार्टमेंट जो रहता है रेगुलेटरी अफेयर्स, वो सबमिशन कैसे करता है वो एक जस्ट ओवरलुक कर लेंगे अपन उसमें। देन आफ्टर ये सबमिशन होने के बाद मतलब अपना उसके बाद कमर्शियल बैचेस कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कमर्शियल बैच मैन्युफैक्चरिंग के पहले अपना अप्रूवल कैसे मिलता है, ठीक है, ऑडिट वगैरह कैसे होता है क्या होता है, एक जस्ट अपन ओवरलुक कर रहे हैं, तो इसमें आपका हर एक डिपार्टमेंट का थोड़ा बहुत वर्किंग भी आपको पता चल जाएगा, और हम फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट कैसे करते हैं वो भी पता चल जाएगा। प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। सो लिटरेचर सर्वे। तो लिटरेचर सर्वे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू ड्रग, या फिर इनोवेटर जिसने मॉलिक्यूल मार्केट में लाया है, जिसने ड्रग प्रोडक्ट फर्स्ट फर्स्ट टाइम जिसने प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट में लाया है, उसका उसका पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी रेफरेंस प्रोडक्ट है उसका इंफॉर्मेशन, या फिर डिसोल्यूशन वगैरह जो भी उसने कैसे किसमें परफॉर्म किया है उसका इंफॉर्मेशन, या फिर उसके मोनोग्राफ्स अगर वो ऑफिशियली प्रेजेंट है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया में है, या ब्रिटिश फार्माकोपिया में है, या फिर इंडियन फार्माकोपिया में है, या फिर अदर फार्माकोपिया में, या इसके अलावा हम जो भी बुक्स या फिर जो भी पर्टिकुलर रेफरेंसेस लेते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एपीआई का अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो ड्रग्स.com करके एक साइट है, आप भी जा सकते हैं वहाँ पे देख सकते हैं कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको वो ड्रग्स.com पे मिल जाएंगी, कि वो उसका फार्माकोलॉजिकल मतलब पूरा पीके/पीडी वगैरह सब उसमें मिल जाएंगे आपको, वो एपीआई के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, मतलब उसका डोज कितना है क्या सब चीजें। ठीक है। देन डिसोल्यूशन.com वगैरह साइट, इसमें आपको एग्जैक्टली या फिर डिसोल्यूशन डाटाबेस वी कैन से, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो भी जहाँ पे भी हम फाइल करें, मतलब इट इज फॉर यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट में वहाँ पे उनका डिसोल्यूशन डाटाबेस है, तो डिसोल्यूशन डाटाबेस में जो हम मॉलिक्यूल के लिए हम जेनरिक प्रोडक्ट डेवलप जो कर रहे हैं उसका डिसोल्यूशन मेथड वो क्या यूज करते हैं, या फिर हम वो मेथड से यूज करेंगे, या फिर और रेफरेंस पर्पस के लिए लेंगे, या फिर हमारा खुद का डेवलपमेंट करेंगे रिजोल्यूशन। तो दैट इज फॉर रेफरेंस पर्पस, तो वो हम वहां से कलेक्ट करेंगे। देन अगर हमें यूरोप मार्केट के लिए डेवलप करना है तो ईएमसी साइट है, यूरोपियन मेडिसिन कंपेंडियम करके, वहां से हम यूरोप में जो भी ड्रग प्रोडक्ट्स है तो उनका इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करेंगे। देन पेटेंट साइट्स जैसे कि यूएस पेटेंट है या फिर यूरोपियन पेटेंट, तो स्पेस नेट है। देन अगर हम ग्लोबल पेटेंट देखेंगे तो वीपो। देन इंडियन पेटेंट अपना, अगर हमें इंडिया में अगर कुछ देखना है या फिर उसने कुछ इंफॉर्मेशन अगर क्लेम किया है तो पर्टिकुलर फॉर दैट पर्पज हम ये साइट्स वगैरह यूज करेंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड। मोरे सर नेक्स्ट स्लाइड। हेलो। देन अभी प्रायर टू डेवलपमेंट हमें जैसे कि इंफॉर्मेशन मिलता है हमारे मैनेजमेंट से या फिर डेवलपमेंट टीम से कि हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अभी हमने ये यूएड कर लिया है, उसका हमें डेवलपमेंट करना है। तो
रिलेटेड टू दैट हम देखेंगे कि वो मटेरियल कौन बनाता है। मतलब से फॉर एग्जांपल आज हम अगर हम पैरासीटामोल पे काम कर रहे हैं तो पैरासीटामोल पैरासीटामोल एपीआई कौन कौन सा कंपनी या फिर कौन सा एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो बनाती है वो देखेंगे। हर एक मतलब उसमें से हम दो या तीन कंपनी से हम अपना रॉ मटेरियल का सैंपल वगैरह बुला लेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे अगेंस्ट अपना फार्माजन। अगर दैट इज इफ दैट एपीआई इज ऑफिशियल इन द यूएसपी और यूरोपियन मोनोग्राफ, तो उसको रेफरेंस में रखते हुए उसका हम वो कॉम्प्लाई करता है या नहीं करता है वो देखेंगे। देन हम उसका इम्प्यूरिटी प्रोफाइल वगैरह देखेंगे, पोटेंशियल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म अगर उसमें होगा तो वो देखेंगे, पार्टिकल साइज विच इज मेन क्रिटिकल क्वालिटी सॉरी क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट वो हम देखेंगे। देन उसकी अवेलेबिलिटी देखेंगे, डीएमएफ में है नहीं है, या फिर कुछ अगर वो एपीआई को उसका पेटेंट वगैरह होंगे तो नॉन इन्फ्रिंजमेंट के लिए हम देखेंगे कि उनका जो रॉ मटेरियल हमें सप्लाई कर रहा है वो कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है कि आगे जाके हमारा प्रोडक्ट इन्फ्रिंजमेंट मतलब अगर किसी पेटेंट में किसी क्लेमिंग में अगर वो क्लेम किया है तो उसको बाईपास करने के लिए जो भी लगेगा हम वो रेफरेंस में रखते हुए वो सोर्सिंग अपन एपीआई का प्रोक्योरमेंट करेंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, जैसे कि हमने कंटेंट्स में देखा था कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडी हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में हम हमारा एपीआई हो या फिर ड्रग प्रोडक्ट हो उसको हम ये पर्टिकुलर स्ट्रेस कंडीशन में रखेंगे, जैसे कि उसको हीट में एक्सपोज करेंगे या फिर ह्यूमिडिटी में एक्सपोज करेंगे, या फिर उसका एसिड या फिर अल्कलाइन इम्पैक्ट देखेंगे, अल्कलाइन कंडीशन में इम्पैक्ट देखेंगे, या फिर उसका ऑक्सीडेशन एंड देन सॉल्यूशन स्टेबिलिटी वगैरह हम उसका देखेंगे। फोटोलिटिक डिग्रेडेशन वगैरह होता है या नहीं वो देखेंगे, एसिड वेट डिग्रेडेशन होता है नहीं वो देखेंगे अपन। तो इसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल आपका मॉलिक्यूल हो या फिर आपका ड्रग प्रोडक्ट हो जो आप बनाएंगे। तो अगर पहले तो अपन इनिशियली एपीआई करेंगे, बट आफ्टर योर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट या फिर आफ्टर योर फाइनलाइजेशन ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट का भी स्ट्रेस कंडीशन में देखेंगे कि इस पे, या फिर ड्यूरिंग आपका डेवलपमेंट जब चालू है तो आप देखेंगे कि आपके पर्टिकुलर एपीआई पे या फिर आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे किस चीज का इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर हीट का इम्पैक्ट हो रहा है तो आपको उसके हिसाब से मतलब आपको ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपको कितना टेम्परेचर चाहिए वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप वो पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे अगर आप वर्किंग कर रहे हो मतलब डेवलप कर रहे हो या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर कंडीशन को वो एक्सपोज नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से आपका जो ड्रग प्रोडक्ट है वो डिग्रेड नहीं होगा या फिर अदर फैक्टर्स में नहीं आएंगे। से फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो जो भी मॉलिक्यूल या फिर जो भी ड्रग प्रोडक्ट आपका ह्यूमिडिटी को एक्सपोज करने के बाद डिग्रेड होता है तो वो आपको पता चल जाएगा। देन एसिडिक कंडीशन में डिग्रेडेशन वगैरह होता है या फिर अल्कलाइन कंडीशन में डिग्रेडेशन होता है आपका मॉलिक्यूल, तो आप आपका एपीआई का सॉरी आप आपका ड्रग प्रोडक्ट का पीएच वैसे आपको पता चल जाएगा। अगर वो एसिड में डिग्रेड होता है तो आप ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऐसे एक्सिपेंट यूज करोगे जिसका पीएच एक तो न्यूट्रल साइड हो या फिर अल्कलाइन साइड हो, या फिर आप उसमें अल्कलाइजर वगैरह यूज करेंगे या फिर एसिडिफाइंग एजेंट यूज करेंगे अगर वो अल्कलाइन में डिग्रेडेशन वगैरह होता है तो। ठीक है। देन ऑक्सीडेशन, अभी ऑक्सीडेशन वगैरह होता होगा तो आप उसमें प्रिजर्वेटिव मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह डालेंगे। सॉल्यूशन स्टेबिलिटी में ऐसा होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या फिर एपीआई है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में स्टेबल है कि नहीं, दैट पर्टिकुलर पीएच, तो वो हम देखेंगे। क्योंकि वो आपको ड्यूरिंग मेथड डेवलपमेंट मतलब जब फार्मुलेशन साइंटिस्ट प्रोडक्ट डेवलप करता है तो वो डेवलप करने के बाद एडीएल डिपार्टमेंट जो रहता है एनालिटिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो उनके पास वो प्रोडक्ट जाता है। तो वो एनालिसिस करने के लिए जो भी मेथड्स लगेंगी मतलब जो भी से फॉर एग्जांपल ऐसे का आपको एनालिसिस करना है या फिर डिसोल्यूशन एनालिसिस करना है या फिर ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज करना है या फिर रेसिडुअल सॉल्वेंट करना है, कंटेनिंग इंफॉर्मेटिव करना है, जो भी टेस्टिंग करना है तो उसका जो मेथड लगेगा तो वो मेथड डेवलपमेंट करने का काम एनालिटिकल डेवलपमेंट टीम करता है अपने यहाँ पे। ठीक है। तो ये सब चीजें हम रिफॉर्मुलेशन स्टडी में करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये हाँ ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्पेटिबिलिटी स्टडी, तो एग्जैक्टली ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्पेटिबिलिटी स्टडी में हम करते क्या है। तो इसमें ऐसा होता है कि प्रायर टू डेवलपमेंट इनिशिएशन
तो प्रायर टू डेवलपमेंट इनिशिएशन हम ये देखते हैं कि आपका जो भी एपीआई है वो कौन से एक्सिपेंट के साथ कंपेटेबल है या नहीं, ये चीज देखने के लिए हम ये डीएसपी स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हम बहुत सारे एक्सिपेंट इवेल्युएट करते हैं, बट हम रेफरेंस में रखते हैं कि इनोवेटर जो प्रोडक्ट है या फिर ब्रांडेड जो प्रोडक्ट है उसने क्या एक्सिपेंट यूज किए, वो हम इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं फ्रॉम लिटरेचर, वो एक्सिपेंट ही बेसिकली जनरली हम यूज करते हैं। या फिर अगर कुछ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट है, उसने अगर एक हाथ स्पेसिफिक एक्सिपेंट या फिर कुछ एक्सिपेंट्स अगर क्लेम किए होंगे पेटेंट, तो वो फॉर्मेशन ड्यूरिंग फॉर्मेशन डेवलपमेंट उसको बाईपास करने के लिए हम कुछ अलग एक्सिपेंट यूज कर सकते हैं क्या। तो वो एक्सिपेंट भी हम इवेल्युएट करने के लिए अपने डीसी स्टडी में हम उसको लेंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि आपका एपीआई एंड आपका जो भी एक्सिपेंट हम यूज करने वाले हैं उसका बाइनरी मिक्सचर बनाते हैं। मतलब से फॉर एग्जांपल आपका एपीआई है और एक एक्सिपेंट है जैसे कि एमसीसी है या फिर लैक्टोस है, तो उसका एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन इन द सेंस, जैसे कि हम बोलते हैं कि टैबलेट है तो टैबलेट में हमारा हमें पता है कि डाइल्यूएंट का कंसंट्रेशन ज्यादा ही रहेगा, डिसइंटीग्रेंट का कंसंट्रेशन हम 2 to 6% यूज करते हैं, देन बाइंडर का कंसंट्रेशन अराउंड 2 to 4 2 to 6% जो भी है नॉर्मल। तो बेसिकली आपका फाइनल कंपोजिशन में या फिर प्रोटोटाइप कंपोजिशन में जितना कंसंट्रेशन जाने वाला है, रिलीवेंट दैट रिलीवेंट कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं डीसी स्टडी में। से फॉर एग्जांपल अभी मुझे मेरा डाइल्यूएंट जाने वाला है 100 mg और मेरा एपीआई भी 100 mg है, तो हम 1:1 प्रोपोर्शन में या फिर 1:2 या फिर 1:10 प्रोपोर्शन जो भी है, ठीक है, वर्स्ट कंडीशन जहाँ पे आएंगी वो हम यहाँ पे रखेंगे। और वो जो बाइनरी मिक्सचर्स हैं हम उनको करेंगे, हम उनको जो स्टेबिलिटी चेंबर्स हैं हमारे 40-75 डिग्री से, मतलब वहाँ पे डिग्री टेम्परेचर रहेगा 40 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी रहेंगी 75%। तो उसको हम ओपन एंड क्लोज कंडीशन में मतलब जो भी हमने बाइनरी मिक्सचर बनाया है हम वो वायल में फील करेंगे, और वो उसको एल्यूमिनियम जो सील रहता है उसको सील करके उसको क्लोज कंडीशन में भी रखेंगे और ओपन कंडीशन में भी रखेंगे। मतलब आपका जो कैप है या फिर उसको अपन जस्ट एक फॉइल लगा के उसको पिन होल करके, मतलब जस्ट वो एक्सपोज होना चाहिए दैट पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी को, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर को, तो वैसे हम केप करें। तो हम उसको स्ट्रेच कंडीशन में भी रखेंगे और नॉर्मल अपना जो रूम टेम्परेचर कंडीशन रहता है जैसे कि 25-60 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस एंड 60% RH। तो ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन पे हम उसको रखेंगे अपने स्टेबिलिटी चेम्बर में। एंड आफ्टर 4 वीक्स 4 to 5 वीक्स, मतलब अराउंड 1 मंथ के बाद हम उसको एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस करते टाइम हम उसका इनिशियल का एनालिसिस भी करेंगे और आफ्टर 1 मंथ जो सैंपल हमें मिले तो हमें हम उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो हम देखेंगे कि विजुअली इंस्पेक्ट क्या करेंगे हम कि जो हमने बाइनरी मिक्सचर बनाया है इनिशियल में वो कैसा था, मतलब पाउडर फॉर्म में था, या फिर उसके लम्प बन गए थे या फिर वो लिक्विडिफाई हो गया था। ठीक है, तो ये जनरल फिजिकल ऑब्जर्वेशन मतलब अपना विजुअल ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे उसका कलर चेंज हो गया या फिर टेक्सचर चेंज हो गया। ठीक है, तो इनिशियल में वो कैसा था और 1 मंथ में कैसा है, अगर वो ये हम मतलब पॉइंट आउट कर लेते हैं और अपना नोट कर लेते हैं हमारे रिपोर्ट में। ठीक है, देन हम उसका मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह चेक करेंगे। आइडियली तो हम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी करते हैं मैक्सिमम टाइम, मतलब एक्सीपेंट और एपीआई का जो बाइनरी मिक्स है उसको हम अपना चेक करेंगे कि आपका ड्रग प्रोडक्ट का मतलब आपका जो एपीआई है वो डिग्रेड कितना हुआ भी है या नहीं हुआ है, तो उससे अपने को पता चल जाएगा। अगर इम्प्योरिटी बढ़ती है, मतलब आपका जो एक्सिपेंट आपने सिलेक्ट किया था फॉर द ड्रग एक्सिपेंट स्टडी, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएंगे कि ये पर्टिकुलर एक्सिपेंट की वजह से आपका ड्रग का इम्प्योरिटी लेवल बढ़ रहा है। तो आप उसको आपको डिसाइड करना है कि वो सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर और कुछ उसमें स्पेसिफिक जैसे कि अभी नाइट्रोसामाइन, जैसे कि नाइट्रोसामाइन एक अभी हॉट टॉपिक है ड्यूरिंग द ड्रग डेवलपमेंट। सो अभी कुछ कुछ एक्सिपिएंट है जैसे कि हमें वो यूज ही करना पड़ेगा, मतलब उसका ऑल्टरनेट नहीं है या फिर आप नहीं कर पाओगे, तो उसमें जो भी एक्सिपिएंट है उसकी जो स्पेसिफाइड लिमिट है, से फॉर एग्जांपल जैसे कि कोविडॉन है तो कोविडॉन में नाइट्रेट नाइट्राइट कंटेंट वगैरह रहेगा, तो जितना आप लो नाइट्रेट नाइट्राइट या फिर उसमें नहीं हो ऐसे कुछ एक्सिपिएंट यूज करेंगे। ठीक है, जो कि प्रोनफुल रहेंगे नाइट्रोसामाइन इम्प्यूरिटीज वगैरह उसको बढ़ाने के लिए, जो भी रिलेटिव कंडीशन लगेंगी वो डेवलपमेंट के लिए, तो वो उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड।
तो ये ठीक है, ये इसमें अभी हम देखेंगे कि आफ्टर कंप्लीटिंग हम इसमें पेटेंट वगैरह इवेल्यूट करते हैं, मतलब पेटेंट में क्या क्लेम किया है। से फॉर एग्जांपल एक था जिसने प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी यूज किया है, वो बोल रहा है कि हमने ऐसा ऐसा प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है, ये एक्सपीएन यूज किए हैं, तो हम ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या फिर ये पर्टिकुलर एक्सपीएंट या फिर ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हम क्लेम करते हैं। तो हमें ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो आगे रख के, मतलब रेफरेंस में रख के हमें हमारा प्रोडक्ट डेवलप करने का है। क्योंकि क्या हो जाएगा कि आप अगर सेम पर्टिकुलर एक्सपीएन यूज करते हैं या फिर उसने जो रेंज दिया है या फिर उसने जो क्लेम किया है, मगर अगर वो आप उसके दायरे में फंस जाते हो तो वो इंफ्रिंजमेंट हो जाएगा। तो वो पेटेंट ही आपके ऊपर केस कर सकता है। सो टू बाईपास दैट पेटेंट, वी हमें हमारा स्ट्रैटेजी है, तो उसके हिसाब से हमें हमारा स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करना है। तो जो भी हमारी रेगुलेटरी स्ट्रैटेजी रहेंगी, मतलब से फॉर एग्जांपल हमने पेटेंट देख लिया, पेटेंट में उसने क्लेम किया एक्सिपिएंट्स या फिर पर्टिकुलर एपीआई का फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, वो जो उसने फॉर्म यूज नहीं किया है वो हम फॉर्म लेंगे, या फिर उसने जो एक्सिपेंट क्लेम किया है तो वो एक्सिपेंट्स हम नहीं लेंगे। या फिर अगर उसने कुछ एक स्पेसिफिक रेशो दिया है या फिर वेट दिया है, तो वो वेट को बाईपास करके, मतलब से फॉर एग्जाम्पल उसने बोला है कि 5 to 10% ये एक्सिपेंट को हमने क्लेम किया है, तो हम एक तो बिलो 5% लेंगे या फिर मोर देन 10% लेंगे, जो भी उसने रेंज दिया है। तो उसको आगे रखते हुए हमारे हम स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे, मतलब एक टेंटेटिव कंपोजिशन वगैरह डेवलप करेंगे। और वो टेंटेटिव कंपोजिशन हम हमारे आईपीआर टीम को भेजेंगे, मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब जो आईपीआर टीम रहती है हमारी, तो वो क्या करेंगी, वो इवेल्युएट करेंगे अगेंस्ट पेटेंट कि आपने जो कंपोजिशन दिया है या फिर आपने जो स्ट्रैटेजी बनाया है दैट इज इंफ्रिंजिंग और नॉट। अगर वो इंफ्रिंजिंग होती है तो वो हमें इन्फॉर्म करेगी, भाई आपने जो एक्सिपेंट यूज किया है या फिर जो आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन आप यूज करने वाले हो, तो ये इंक्रीज कर रहा है। तो उसके हिसाब से हमें एक तो स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा या फिर एक्सिपेंट चेंज करना पड़ेगा, जो भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आईपीआर का हमें एक जस्ट एक पता चल गया है कि आईपीआर डिपार्टमेंट करता क्या है एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसके बाद में जो भी एपीआई हमें लगने वाला है डेवलपमेंट के लिए, वो हम ऑर्डर करते हैं। तो ऑर्डर करने के लिए हमें, जैसे कि हमने बोला था कि लाइसेंस वगैरह लगते हैं, से फॉर एग्जांपल अभी मुझे डेवलपमेंट इनिशिएट करने का है, तो डेवलपमेंट इनिशिएशन के लिए मुझे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लगेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए मुझे फॉर्म 29 या फिर CT10 पहले आप, मतलब अगर इफ इट इज अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट, मतलब CDSCO का एक साइट है, वहां पे जाकर आप देखेंगे अगर वो लिस्ट में वो पर्टिकुलर ड्रग प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हमें CT10 की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली फॉर्म 29 अप्लाई करके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आप ले सकते हो। अगर वो वहां पे अवेलेबल नहीं है तो आपको पहले CT10 अप्लाई करना पड़ेगा, बाद में फॉर्म 29 आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मिल जाएगा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। सिमिलर वे में अगर एपीआई आप बाहर से बुला रहे हो, इंडिया से बाहर से, तो आपको एपीआई इम्पोर्टेंट का एपीआई इम्पोर्ट के लिए लाइसेंस लगेगा, या फिर R&D अगर आप बाहर से मतलब बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लगेगा। उसके लिए कुछ डिक्लेरेशंस वगैरह लगते हैं, तो वो डिक्लेरेशंस एंड आपका ब्रेकअप जो भी है, आपको एपीआई कितना रिक्वायरमेंट है या फिर आपको टैबलेट्स कितनी लगने वाली है, कैसे लगने वाली है, उसका एक जस्टिफिकेशन देके आप वो पर्टिकुलर साइट पे जाके उसको अपलोड करके आपको लाइसेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन अभी ये सब चीज होने के बाद R&D आपके पास रिसीव हो जाता है। ठीक है, आपके पास इनोवेटर प्रोडक्ट अभी आ गया है, रेफरेंस प्रोडक्ट अभी आपके पास आ गया है, तो आप टेस्टिंग करोगे, मतलब उसका फिजिकल टेस्टिंग कैसे करोगे कि उसका कलर कैसा है, क्या है। ठीक है, उसके डायमेंशन कैसे है, जो कंटेनर उन्होंने यूज किया, जैसे फॉर एग्जांपल एलजी बॉटल है या फिर एलयू लिस्टर है या फिर जो भी पैक प्रोफाइल है वो आप इवेल्यूट करोगे। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली रिलेटेड टू कंटेनर, मतलब एचडीबी बॉटल है या फिर पीवीसी पीवीसी ब्लिस्टर है या फिर आलू आलू ब्लिस्टर है या फिर आलू एक्लैब ब्लिस्टर वगैरह है, तो ये सब इवेल्यूशन करता है अपना पैकेजिंग डेवलपमेंट टीम। तो पैकेजिंग डेवलपमेंट एक टीम रहता है यहाँ पे R&D में। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो भी इनोवेटर का प्रोडक्ट आता है या फिर हम जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो भी बॉटल्स लगेंगी या फिर ब्लिस्टर्स, जो भी हमारा पैक प्रोफाइल हमें चाहिए, उसके हिसाब से वो इवेल्युएट करेंगे वो लोग। वो सजेस्ट करेंगे कि ऐसा ऐसा इनोवेटर ने किया है, तो हम ऐसा ऐसा पर्टिकुलर पैक हम स्टडी करेंगे, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें बताएंगे, वो इवेल्युएट करेंगे।
देन फिजिकल टेस्टिंग में हम चेक करेंगे कि वो फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट करेंगे अपना कि उसका थिकनेस का हार्डनेस कैसा है, या फिर डिसइंटीग्रेशन पैटर्न कैसा है, डिसइंटीग्रेशन कितने टाइम में होता है, क्या टाइम होता है, या फिर उसके डायमेंशंस, टूलिंग के डायमेंशन, जो भी टैबलेट्स है उसके डायमेंशंस वगैरह हम चेक करेंगे। क्योंकि हमें अगर हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है तो हम आइडियली मतलब जो कॉपी रहता है, हम कॉपी कॉपी बना रहे हैं, मतलब एक जनरिक प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट होता है वो दैट इज कॉपी कॉपी ऑफ आवर रेफरेंस प्रोडक्ट। तो हम उसको रेफरेंस में रख के हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। तो ये सब चीजें वो टाइम पे हम इवेल्यूट करते हैं। देन केमिकल टेस्टिंग में हम उसका ऐसे देखेंगे इनोवेटर का कि ऐसे कैसे आता है, क्या आता है, रिजोल्यूशन कैसे आ रहा है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कैसी है उसकी, कंटेन यूनिफॉर्मिटी, या फिर जो भी केमिकल टेस्टिंग हमें लग रही है इसमें जितना मैंने मेंशन किया है, इसके अलावा जो भी टेस्टिंग होगी वो हम देखेंगे। देन रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक कंसेप्ट है जो कि अपने एनालिटिकल डेवलपमेंट टीम अपना वो करता है। मतलब अभी तो इसमें सोल्यूबल इंसोल्यूबल फ्रैक्शन हो गया, तो से फॉर एग्जांपल एक टैबलेट है, तो टैबलेट में सोल्यूबल मटेरियल भी रहेंगे, इंसोल्यूबल मटेरियल भी रहेंगे। तो हम जो भी सोल्यूबल मटेरियल है वो तो डिजोल्व हो जाएंगे उसमें, और जो भी इनसोल्यूबल मटेरियल है तो उसमें वो अनडिजोल्व रहेंगे। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि अ, आपको इंफॉर्मेशन लिटरेचर सर्वे के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि इसमें एमसीटी है या फिर एमजी स्टीरेट है या फिर जो भी है। तो एक नॉमिनल टेंटेटिव आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि इनोवेटर ने सोल्यूबल मटेरियल से फॉर एग्जांपल लैक्टोज है तो वो तो डिजोल्व हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। आपके पास आपका एपीआई का तो वेट है, तो जो सोल्यूबल फ्रैक्शन का वेट वो उसमें डिजोल्व हो जाने के बाद उसमें माइनस हो जाएगा, और जो भी इनसोल्यूबल मटेरियल उसका आपको वेट आपको पता चल जाएगा। आपके पास एक फाइनल वेट रहेगा टैबलेट का, तो उसमें से आपने एपीआई का वेट माइनस कर दिया, सोल्यूबल वेट, सोल्यूबल जितने भी कंपोनेंट सोल्यूबल है उसका वेट माइनस कर दिया, और इनसोल्यूबल कंपोनेंट का आपको वेट वहां पे मिल जाएगा, और आपको सोल्यूबल का भी वेट मिल जाएगा। मतलब आप उसको अगर फाइनल वेट से माइनस कर दें, इनसोल्यूबल वेट को माइनस कर देंगे तो बेसिकली जो भी सोल्यूबल कंपोनेंट्स इन्वर्टर ने यूज मतलब एक्सिपेंट यूज किए हैं उसमें, या फिर इनसोल्यूबल कंपोनेंट्स उसने यूज किए, तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया आ जाएंगे उसमें से कि उसने कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने एमसीसी डाला है तो एमसीसी पानी में डिजोल्व नहीं होता है, वो अनडिजोल्व रहेगा। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि उसने उसने एमसीसी कितना डाला है, या फिर लैक्टोज अगर लेता है तो वो लैक्टोज डिजोल्व हो जाएगा, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसने सोल्यूबल फ्रैक्शन कितना लिया है। तो रादर देन दिस रिवर्स इंजीनियरिंग में ऐसा होता है कि एनालिटिकल मेथड्स रहती है कुछ, जिसमें से जिससे हम हमें पता चल जाता है कि इनोवेटर ने कितना कंसंट्रेशन, मतलब जो भी स्पेसिफिक फंक्शन एक्सिपिएंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मॉडिफाइड रिलीज फॉर्मुलेशन बनाएंगे या फिर कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, तो उसमें जो भी रिलीज कंट्रोलिंग पॉलीमर रहेगा, जैसे कि हाइप्रोमिलोज है, तो उसका कंसंट्रेशन हमें जानना है कि इनोवेटर ने अगर कैसे किए। तो उसके लिए हमारा एनालिटिकल डेवलपमेंट टीम क्या करेगा, जो भी पर्टिकुलर रेसिपिएंट का मेथड है फॉर दी गेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन, वो उनका उसके हिसाब से मेथड वो डेवलप करेगा, और वो क्या करेगा कि हमें एनालिसिस करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि दैट पर्टिकुलर एक्सिपेंट में कितना उन्होंने यूज किया है। तो उसके बेसिस पे भी हम एक हमारा टेंटेटिव डेवलपमेंट के लिए कंसंट्रेशन हम हमारे फॉर्मुलेशन में पता चल जाएगा, हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट। देन हम एक्सिपिएंट कैसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने बोला कि इनोवेटर जो भी एक्सिपिएंट जनरली यूज करता है हम वही एक्सिपिएंट हम हमारे फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन में लेते हैं। बट रादर देन अगर जैसे कि हमने देखा कि पेटेंट इंफ्रिंजमेंट वगैरह कुछ होता है, तो हम अदर एक्सिपिएंट भी हम ले सकते हैं। तो उसके लिए उसके हिसाब से हमें स्टडी करना पड़ेगा। देन कॉन्सेंट्रेशन वगैरह कितना लेते हैं हम, क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं, तो उसके लिए आपका हैंडबुक ऑफ एक्सिपिएंट है, तो हम जनरली ड्यूरिंग एम हम जनरली यूज करते हैं। तो आपको एग्जैक्टली एक आइडिया आ जाएगा कि टेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना लेते हैं, कितना यूज कर सकते हैं। आप उससे ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, नेसेसरी नहीं है। अगर आपका वो स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में वो स्पेसिफिक एक्सिपिएंट अगर रोल प्ले कर रहा है तो आप उतना भी ले सकते हो। ठीक है। देन टूलिंग्स मतलब ट्रेड रेस, तो जो सैंपल्स आपके पास आए हैं रेफरेंस प्रोडक्ट के, तो उसका जो डायमेंशन है जनरली हम उसी को रेफरेंस में रखते हुए हमारा टूलिंग का डायमेंशन लेंगे। अभी जैसे कि हम यूएस मार्केट के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमारा एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि इनोवेटर का डायमेंशन अगर 17 mm के नीचे है तो हम
साइज एंड साइज शेप में एंड वॉल्यूम में हम हमें एक स्पेसिफिक वेवर मिल जाता है, बट अगर वो 17 mm से ऊपर है तो हमें सेम डायमेंशन लेना है या फिर उससे नीचे हम ले सकते हैं। तो ऐसा हम सिलेक्शन करते हैं टूलिंग डेवलप टूलिंग लेने के लिए। देन अभी हमारे पास, हमको तो पता चल गया है कि अभी एक्सीपेंट कौन सा लेना है या फिर टूलिंग्स हम कौन सा यूज करने वाले हैं। तो हमने डेवलपमेंट इनिशिएट कर दिया। अभी डेवलपमेंट इनिशिएट करते टाइम या फिर करने के बाद जो भी हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, मतलब से फॉर एग्जांपल हमने डायरेक्ट कंप्रेशन ले लिया या फिर ड्राई ग्रेनुलेशन ले लिया या फिर वेट ग्रेनुलेशन अप्रोच ले लिया, तो ड्यूरिंग दैट आपको जो आपका रॉ मटेरियल शिफ्ट करना है उसके लिए हम सीव कौन सा यूज करेंगे। देन अगर मिलिंग करना है तो मिलिंग के लिए हमें कौन सा मिल या फिर कौन सा स्पेसिफिक साइज का मिल यूज करना है। देन आपका अगर उसको मिक्सिंग कर रहे हैं हम, तो ड्राई मिक्सिंग टाइम कितना रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए। तो हम उसको कैसा है पर्टिकुलरली हम से फॉर एग्जांपल हमने 10 मिनट ले लिया, 10 मिनट लेने के बाद हमने उसकी सैम्पलिंग की, सैम्पलिंग करने के बाद 15 मिनट का भी हमने सैंपल ले लिया, 20 मिनट का भी सैंपल ले लिया, तो हमें एक जनरलाइज आइडिया आ जाएगा कि सैम्पलिंग करने के बाद उसका हम एनालिसिस करेंगे या 10 मिनट में वो कैसा बिहेव कर रहा है। मतलब से फॉर एग्जाम्पल हमें उसका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी या फिर ब्रेन यूनिफॉर्मिटी वहाँ पे 10 मिनट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, 15 मिनट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, 20 मिनट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एनालिसिस करने के बाद हम हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हम टाइम कितना रख सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए या फिर लुब्रिकेशन के लिए, या फिर अगर हमें ग्रेनुलेशन टाइम, मतलब हम ग्रेनुलेशन अगर कर रहे हैं तो बाइंडर एडिशन टाइम या फिर हम ग्रेनुलेशन टाइम, ये सब चीजें हम ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम देखते हैं। से फॉर एग्जांपल हम ड्राइंग कर रहे हैं तो उसका ड्राइंग टाइम कितना है या फिर कितना उसको उसका एलओडी कैसा रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, ये सब चीजें हम देखते हैं। देन ड्राइंग होने के बाद अगर उसका मिलिंग करना है या फिर शिफ्टिंग करना है हमें, तो कौन सा सीव लेने का या फिर उसको कौन सा मिल यूज करना है, वो सब चीजें यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये अभी इट इज अप टू सपोज जो भी ब्लेंडिंग लुब्रिकेशन रहेगा, मतलब पोस्ट ड्राइंग जो भी प्री लुब्रिकेशन में हम मटेरियल डालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डिसिंटेग्रेंट डालेंगे या फिर आपकी फंक्शनल पॉलीमर डालेंगे, या फिर लुब्रिकेशन में हम या फिर जो भी लुब्रिकेंट डालेंगे, तो उसका भी एक स्पेसिफिक टाइमिंग हम फिक्स करते हैं बेस्ड ऑन दी आपके अलग अलग सैंपल निकाल के उसको टेस्टिंग करके एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स किया जाता है। देन जो भी ड्यूरिंग कोटिंग अगर हम कोटिंग करते हैं तो कोटिंग में कौन सा कैसे कैसे पैरामीटर रखने हैं, मतलब गन कौन सा लिया आपने या फिर गन टू वेट डिस्टेंस कितना रखा है, एयर एटोमिसिटी कितना रखा है उसका, या फिर एयर पैटर्न कितना रखा है, स्प्रे रेट कितना रख रहे हैं, इनलेट टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, वेट टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट है, या फिर एग्जॉस्ट कितना उसका आना चाहिए, एयर फ्लो कैसा है। मतलब अगर हम से फॉर एग्जांपल अगर एक्वेस कोटिंग करते हैं तो एक्वेस कोटिंग में उतना हम क्या करेंगे, इनलेट टेम्परेचर अराउंड 50 to 60 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका बेड टेम्परेचर जो है वो अराउंड 30 to 42 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो यही सेम चीज हम अगर नॉन एक्वेस कोटिंग करते हैं, से फॉर एग्जांपल आईपीए या एसीटोन या एमडीसी वगैरह लेते हैं, तो ये इनलेट टेम्परेचर या बेड टेम्परेचर वो चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट जो भी हम चूज करते हैं। तो ये बेसिकली ऐसी चीजें हम करते हैं टू वैलिडेट द प्रोसेस पैरामीटर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट अभी होता क्या है कि हम एक स्पेसिफिक अभी कौन सा भी इक्विपमेंट लेंगे या फिर कोई भी से फॉर एग्जांपल ब्लेंडर ले लिया, तो ब्लेंडर ले लेने के बाद उसका एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेंसी रहेगा, मतलब वो 5 लीटर का ब्लेंडर है या फिर 10 लीटर का ब्लेंडर है या फिर 15 लीटर है या फिर 100 लीटर है, 200 लीटर है, जो भी इक्विपमेंट अवेलेबल है हमारे यहाँ पे हमारे एंड पे। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो मटेरियल है तो उसका वीडी कितना है, तो उसके हिसाब से हम ऑक्यूपेंसी उसका सेट करते हैं। मतलब से फॉर एग्जांपल 5 लीटर का ब्लेंडर है और 5 लीटर के ब्लेंडर में हम हमारा मटेरियल का वीडी है से फॉर एग्जांपल 0.5, तो 5 लीटर के हिसाब से वो हो जाएगा 2.5, मतलब 2.5 kg तक मटेरियल हम उसमें डाल सकते हैं, बट वो हो जाएगा उसका 100% ऑक्यूपेंसी। बट 100% ऑक्यूपेंसी अगर हो गया और हम उसको रोटेट करें, मतलब से फॉर एग्जांपल पूरा ब्लेंडर भर गया है, हम उसको रोटेट करें, तो वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगा वहां पे। या फिर एकदम लोअर कॉन्सेंट्रेशन में रख दिया हमने 30% के नीचे या फिर 20% के नीचे, तो उसमें भी डी मिक्सिंग के चांसेस या फिर सेपरेशन के चांसेस है आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट के। तो उसके हिसाब से हम जनरली 30 to 70% का ऑक्यूपेंसी हम ड्यूरिंग डेवलपमेंट लेते हैं। मतलब से फॉर एग्जांपल
अभी 5 लीटर का ब्लेंडर है तो 5 लीटर हमारा रॉ मटेरियल या फिर जो भी ब्लेंड हमने बनाया है उसका बीडी अगर 0.5 है तो अराउंड 2.5 kg हमारा वो 100% ऑक्यूपेंसी हो जाएगा। और 2.5 kg के 30% कितना आता है, मतलब कितना 2.5 मतलब अराउंड 750 ग्राम आपका 30% ऑक्यूपेंसी हो जाएगा। एंड 70% के हिसाब से अराउंड जो भी 1700-1800 ग्राम जो भी है वो आ जाएंगे। तो वो एक स्पेसिंग रहेगा आपके प्रोडक्ट को मूव होने के लिए, मतलब जो भी आप ब्लेंड है उसको मूव होने के लिए। तो वो पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए जो स्पेस रहेगा उसकी वजह से आपका ब्लेंड प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा और आपको आपका ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा। तो हम जो भी एक्सिपेंट लेते हैं, सॉरी जो भी इक्विपमेंट लेते हैं, तो उसको ऑक्यूपेंसी हम विथ रिस्पेक्ट टू ऐसा हम सिलेक्ट करते हैं। मतलब जो भी बैच साइज कैलकुलेट हम लेते हैं तो उसके हिसाब से ऑक्यूपेंसी कितना आएगा क्या आएगा। अगर वो 70% या फिर 80% के ऊपर जा रहा है तो प्रॉपर मिक्सिंग होगा नहीं होगा, उसके लिए हम बैच साइज उस ऑक्यूपेंसी के हिसाब से डिसाइड करते हैं। मतलब जो भी हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल है उसके हिसाब से हम वैसे सिलेक्ट करते जाएंगे और इक्विपमेंट भी वैसे सिलेक्ट करते जाएंगे। तो ये टेंटेटिव एक सिलेक्शन मतलब वैसा सिलेक्शन के लिए हमारा एक टेंटेटिव मेथड है जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो मोरे सर। देन वी डू द फॉर्मूला। अभी आपका एक्सिपेंट सिलेक्शन हो गया, आपका प्रोसेस सिलेक्शन हो गया, ये सब चीजें हो गई। अभी आप डेवलपमेंट में प्रोटोटाइप डेवलपमेंट हो गया, मतलब आपने एक पर्टिकुलर टैबलेट वगैरह या फिर पर्टिकुलर कैप्सूल या फिर सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन वगैरह एक बार बना लिया। अभी बनाने के बाद हम मतलब एक टेंटेटिव आपके पास एक आ गया है कि ये कॉन्सेंट्रेशन में आपको आपका रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, मतलब रिजोल्यूशन अच्छा मिल रहा है या फिर ऐसे अच्छा मिल रहा है या फिर आपका ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी जो है वो कंट्रोल्ड में है या फिर जो भी डिसइंटीग्रेशन वगैरह वो सब जैसा आपको रिक्वायरमेंट है वैसा हमारे पास है। तो ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली हम करते हैं यूजिंग डिजाइन एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर और मिनी टैब सॉफ्टवेयर। तो उसमें जो भी डिजाइन है उसमें फुल फैक्टोरियल होगा या फिर फ्रैक्शनल फैक्टोरियल होगा या फिर बॉक्स बेन के सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन या फिर मिक्सचर डिजाइन वगैरह, ये सब अलग अलग डिजाइन हम यूज करके हमारे हमारा प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आपके जो भी फंक्शनल एक्सिपमेंट है, से फॉर एग्जांपल बाइंडर है या फिर डिसइंटीग्रेंट है या फिर लुब्रिकेंट है। तो से फॉर एग्जांपल आप ये अपना बाइंडर है तो बाइंडर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 10% है। तो हम क्या करेंगे, लोअर साइड भी उसका बाइंडर कॉन्सेंट्रेशन का एक बैच लेंगे, हायर साइड भी बाइंडर कॉन्सेंट्रेशन का एक बैच लेंगे और हम एक चेक करेंगे कि ये रेंज जो हमने लिया है उसमें ये एक्सिपिएंट का इनफैक्ट आपके जो भी मतलब क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स रहेंगे, से फॉर एग्जांपल रेजोल्यूशन पे कुछ गिरता है क्या, या फिर डिसइंटीग्रेशन पैटर्न पे कुछ गिरेगा या फिर ग्रैनुलोमेट्री, मतलब अभी बाइंडर है तो ऑब्वियसली अगर बाइंडर बढ़ाते हैं तो ग्रैनुल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़ जाएगा। अगर बाइंडर कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं तो ग्रैनुल्स हमें कम मिलेंगे। या फिर विथ रिस्क टू, जैसे कि डिसइंटीग्रेंट है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन डिसइंटीग्रेंट लेंगे तो हमारा फास्ट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, या फिर लो डिसइंटीग्रेंट कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो वो टैबलेट डिसइंटीग्रेट होने के लिए टाइम लेगा। तो ये ऑप्टिमाइजेशन जो भी है ये ऐसे हम ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग ओफैट वन फैक्टर एट टाइम, या फिर अपना जो भी मैंने जैसे बोला तो डिजाइन एक्सपर्ट या फिर मिनीटेक सॉफ्टवेयर यूज करके अलग अलग डिजाइन यूज करके हम इसका करते हैं। तो इसमें फॉर्मुलेशन ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाता है एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाता है। तो फॉर्मुलेशन ऑप्टिमाइजेशन में मैंने आपको एक एग्जांपल हम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो सिमिलर वे में जैसे कि हमने फॉर्मुलेशन ऑप्टिमाइजेशन किया है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मोरे सर, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन सिमिलर वे में अभी जो भी प्रोसेस हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब ग्रैनुलेशन, अगर से फॉर एग्जांपल ग्रैनुलेशन, तो ग्रैनुलेशन में हमारा बाइंडर एडिशन टाइम हो गया या फिर मिक्सिंग टाइम हो गया या फिर हम जो चॉपर का या फिर इम्पेलर का जो स्पीड रख रहे हैं उसका टाइम, या फिर ब्लेंडिंग है तो ब्लेंडिंग में हमारा ब्लेंडिंग टाइम हो गया, मतलब कितने मिनट के लिए हम घुमा रहे हैं उसको या फिर कितना आरपीएम पे घुमा रहे हैं उसको हम। ठीक है। देन कॉम्प्रेशन, अभी से फॉर एग्जांपल कॉम्प्रेशन है तो कॉम्प्रेशन में हम टेरेट स्पीड कितना रख रहे हैं, मतलब कितने आरपीएम पे हम उसको कॉम्प्रेशन कर रहे हैं, या फिर कि कितने हार्डनेस पे हम उसको कॉम्प्रेस करें। मतलब से फॉर एग्जांपल
मेरा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मैं अगर उसको 10 न्यूटन, सॉरी 70 न्यूटन या फिर 4 kg, मतलब 4 kg हार्डनेस उसको दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर 40 न्यूटन उसको हार्डनेस दे रहा हूँ, तो लोअर साइड कितना जा सकती है, हायर साइड कितना जा सकती है, ये सब प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन हम ड्यूरिंग हमारा स्केल अप बैच जो रहता है, मतलब हमने एक यहाँ पे स्मॉल स्केल में हमने देख लिया, तो अभी जब हम प्लांट पे जाएंगे, प्रोडक्शन में जाने के बाद वहां पे ये पर्टिकुलर प्रोसेस हम ऑप्टिमाइज करेंगे, क्योंकि स्मॉल स्केल का इक्विपमेंट्स अलग होता है आपका, और लार्ज स्केल में इक्विपमेंट्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, तो वो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हम जो भी प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन जनरली रहता है वो प्लांट पे करते हैं, और जो भी फॉर्मुलेशन ऑप्टिमाइजेशन रहता है वो हम यहाँ पे अपने लैब लेवल पे कर लेते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो हम चेंजेस उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अभी ये सब डेवलपमेंट वगैरह हो गया, डेवलपमेंट ड्यूरिंग ये चीजें भी देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट आपका रेफरेंस प्रोडक्ट के साथ कितना सिमिलरिटीज दिखा रहा है, मतलब से फॉर एग्जांपल अभी आपको मार्केट मतलब उसका बी स्टडी करना है, मतलब बायो इक्विवेलेंस स्टडी अगर उसको करना है, तो बायो इक्विवेलेंस स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रायर टू यहाँ पे इन विट्रो स्टडी जो करते हैं, मतलब बायो इक्विवेलेंस आपका इन विवो स्टडी हो गया इनसाइड द बॉडी, जो हम क्लिनिकल स्टडी, क्लिनिकल इन द सेंस उसका ह्यूमन बींग्स पे हम उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करते हैं, और इन विट्रो स्टडी जो आउटसाइड द बॉडी जो भी हम रिजोल्यूशन वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो ये लैब लेवल पे होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक जो भी रेफरेंस प्रोडक्ट है उसका भी रिजोल्यूशन करते हैं, और जो हमने इन हाउस प्रोडक्ट बनाया है उसका भी रिजोल्यूशन करते हैं, और उसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करते टाइम हम क्या करते हैं बेसिकली कि जी से फॉर एग्जांपल हमने 0.1 नॉर्मल एएसएल में, या फिर 4.5 पीएच, या फिर 6 फॉस्फेट बफर, जो भी मीडिया हमने सिलेक्ट किया उसको हम रेफरेंस में रखेंगे, इनोवेटर का भी रिजोल्यूशन डाटा एंड अपना इन हाउस का रिजोल्यूशन डाटा, तो उसको हम एक स्टैटिस्टिकल टूल है अपना F2 और F1 कैलकुलेट करने के लिए, तो वो हम कंपेयर करेंगे, और F2 हमारा कभी भी मोर देन और इक्वल टू 50 होना चाहिए, मतलब वो उतना कंपेरेबल है, अगर वो 50 के नीचे जाता है तो वो कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। और F1 वैल्यू जो रहती है मतलब डिसिमिलरिटी वैल्यू, तो वो लेस देन 15 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हम मल्टीमीडिया वगैरह इसमें देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जब हम सिमिलरिटीज देखते हैं, मतलब F2 देखते हैं, तो उसमें क्या क्या स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है, तो उसमें रिक्वायरमेंट ऐसी रहती है कि एटलीस्ट 3 टाइम पॉइंट्स तो भी आने चाहिए। से फॉर एग्जांपल आपका हमने क्या किया है, मॉडिफाइड रिलीज फॉर्मेशन बनाया, तो उसका हमने टाइम पॉइंट देखा कि 1 आवर में रिलीज कितना है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जो भी आपका लास्ट तक हम जितने भी टाइम पॉइंट्स आएंगे, तो उसमें हमको सिलेक्ट करना है कि एटलीस्ट 3 टाइम पॉइंट्स तो भी आपको F2 कैलकुलेशन में आने चाहिए, ठीक है। देन जो भी टाइम, हाँ, हम एक क्राइटेरिया और भी देखेंगे कि हम कहाँ तक लेंगे, मतलब जो भी डिसोल्यूशन आ रहा है हमारा, तो कहाँ तक लेंगे, कि मोर देन और इक्वल टू 85% रिलीज जहाँ पे आ गया, हम वही टाइम पॉइंट तक उसका डिसोल्यूशन देखेंगे। से फॉर एग्जांपल रेफरेंस अगर 7 घंटे में या फिर 8 घंटे में मोर देन 85 रिलीज दे रहा है, और इनो अपना इन हाउस फॉर्मुलेशन भी 7 घंटे 8 घंटे में मोर देन 85 रिलीज दे रहे हैं, तो हम वो 7 घंटे तक का ही टाइम पॉइंट लेंगे, आगे वाला टाइम पॉइंट नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम सिमिलरिटीज उसमें चेक करते हैं, एंड उसमें भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहता है कि जैसे कि आपका इनिशियल टाइम पॉइंट जो भी पहला टाइम पॉइंट हो, से फॉर एग्जांपल अगर मॉडिफाइड रिलीज है आपका, उसमें आप उसको हाफ आवर में कलेक्ट कर रहे हो, या फिर 1 आवर का ड्रग रिलीज देख रहे हो, या फिर इमीडिएट रिलीज में 5 मिनट का या फिर 10 मिनट का देख रहे हो, तो उसमें आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट शुड बी लेस देन 20% होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट टाइम पॉइंट जो जितने भी टाइम पॉइंट्स रहेंगे उसका 10% के नीचे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रहना चाहिए, तो ये पर्टिकुलरली। देन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हमने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के बाद हम उसको स्टेबिलिटी में लोड करेंगे, तो कौन से कंडीशन में हम उसको लोड करते हैं, और या फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट है एज पर आईसीएच गाइडलाइंस। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटेड कंडीशन जो भी 40-75 का जो कंडीशन रहता है अपना, 40 डिग्री सेल्सियस एंड 75% ह्यूमिडिटी, ये अपना वर्स्ट कंडीशन या फिर ये स्ट्रेस कंडीशन हो गया है अपना यहाँ पे। देन इंटरमीडिएट कंडीशन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 65, और 30 डिग्री सेल्सियस 70
75% RH में हम 25 डिग्री सेल्सियस 60% RH को कंसिडर करते हैं। एंड अगर फोटो स्टेबिलिटी स्टडी करना है तो उसको दैट पर्टिकुलर सैंपल हम फोटो मतलब यूवी यूवी के यूवी में अंडर यूवी उसको रखेंगे, जो कि 1.2 लक्स आवर्स उसका उतना कंडीशन आना चाहिए। ठीक है, रादर देन दिस हम अगर मतलब अदर फॉर्मुलेशन कहते हैं जैसे कि लिक्विड प्रिपरेशन से या फिर अदर जो भी स्टेबिलिटी कंडीशन है, यहाँ पे हमने मेंशन किया है जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए 5 डिग्री सेल्सियस जो जिसका भी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट या फिर जिसके लिए अलग डोसेज फॉर्म के लिए जो कम लगता है हमें, तो वो यहाँ पे हमने मेंशन किया है जैसे कि 5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। देन एक्सेलरेटेड कंडीशन में अपना रूम टेम्परेचर जो कंडीशन हम ले रहे हैं 45-60 का, लॉन्ग टर्म में -20 डिग्री। मतलब ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए हम जो जिसका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये स्टेबिलिटी डाटा हमने स्टेबिलिटी डाटा में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमने स्टेबिलिटी में रखा है तो उसका हर एक कंडीशन में, मतलब से फॉर एग्जांपल हम आपने 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ में उसको रख दिया है, तो 1 मंथ के बाद उस 1 मंथ होने के बाद उसका एनालिसिस होगा। जो भी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपने टेस्टिंग उसमें डाली है वो टेस्ट हम करवाएंगे, और वो कंपेयर करेंगे कि इनिशियल के साथ आपका कैसा रिजल्ट आ रहा है, या फिर आपका ऐसे का मतलब ऐसे कम हो रहा है या फिर रिजोल्यूशन ड्रॉप हो रहा है या फिर जो भी चीजें हैं, तो आपका प्रोडक्ट स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, ये आपको स्टेबिलिटी डाटा बेसिस पे पता चल जाएगा। तो बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी डेटा हम उसका एक्सपायरी भी मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट 6 महीना एक्सीलरेटेड कंडीशन में ओके है, तो लॉन्ग टर्म कंडीशन में अगर आपका लॉन्ग टर्म में आपके प्रोडक्ट का मतलब आपका लॉन्ग टर्म में आपका प्रोडक्ट अगर 9 महीने के लिए स्टेबल है, तो आप जनरली 18 महीने तक का शेल्फ लाइफ उसको दे सकते हैं। सिमिलर वे में अगर आपका लॉन्ग टर्म आपका 12 मंथ तक डाटा ओके है, तो आप 24 मंथ का स्टेबिलिटी उसको दे सकते हो। अभी ये कैसे दे सकते हैं, मतलब से फॉर एग्जाम्पल आपका 12 महीने का स्टडी तो ओके आ गया, अभी आपका 18 मंथ और 24 मंथ का सैंपल निकलना बाकी है, बट बेस्ड ऑन एक्सेलरेटेड कंडीशन एंड लॉन्ग टर्म डाटा हम ये शेल्फ लाइफ प्रोपोज कर सकते हैं। मतलब ये टेंटेटिव शेल्फ लाइफ रहेगा। साइड बाय साइड हम लॉन्ग टर्म का एनालिसिस तो चालू रहेगा अप टू आपका जितना भी आपने जितने मंथ के लिए आपने स्टेबिलिटी के लिए उसको रखा है। सिमिलर वे में अगर एक्सेलरेटेड कंडीशन में आपका ड्रग प्रोडक्ट फेल हो जाता है एंड आपके पास जो आपका इंटरमीडिएट कंडीशन है, जो कि हमने 30-75 या फिर 30-65 जो हमने बोला था, तो कीपिंग दैट पर्टिकुलर कंडीशन इन रेफरेंस, हम अपने प्रोडक्ट का अगर आपका से फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट का 12 मंथ का डाटा ओके है, तो हम हमारे प्रोडक्ट का 18 महीने का शेल्फ लाइफ उसको दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा इंटरमीडिएट कंडीशन दैट इज 30-65 हो या 30-75, आपका जो भी कंडीशन है इंटरमीडिएट का, उसका अगर 9 महीने का डाटा ओके आता है, तो हम अराउंड 13.5 महीने उसका शेल्फ लाइफ दे सकते हैं। अगर आपका इंटरमीडिएट कंडीशन भी फेल हो रहा है, तो आपको लॉन्ग टर्म डाटा बेसिस पे उसको शेल्फ लाइफ देना पड़ेगा, मतलब जो कि हम देते हैं अराउंड 12 मंथ्स का। ठीक है, तो ये हो गया स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का एनालिसिस हमारा एनालिटिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता है। उसके बाद में है अपना स्केल अप बैचेस एंड एग्जीक्यूट बैचेस। तो अभी आपका प्रोडक्ट डेवलप हो गया, आपका स्टेबिलिटी भी ओके आया है, तो हम क्या करेंगे, अभी उसको स्केल अप करेंगे। स्केल अप करेंगे मतलब स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल अप जाएंगे। तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी स्केल अप कैलकुलेशन है, वो रेफरेंस में रखते हुए हमारा टीटी टीम स्केल फैक्टर्स लगा के हम वो बैचेस लार्ज स्केल पे वहां पे लेंगे। तो एक्चुअली कैसे रहता है कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहता है स्केल बैच लेने के लिए या फिर एग्जीक्यूट बैच लेने के लिए। तो एग्जीक्यूट बैच लेने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, 1/10 ऑफ द कमर्शियल बैच और 1 लाख यूनिट शुड बी पैक्ड। तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट हम बैच साइज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का डिपार्टमेंट जो रहता है, वो एज ए मीडिएटर करके काम करता है विथ फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट एंड अपना प्रोडक्शन का टीम, क्यूए का टीम, क्यूसी का टीम, उसके साथ में ये कोऑर्डिनेट विद कोऑर्डिनेशन हम वो बैच बनाते हैं। और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट देयर वर्क कर मतलब वो काम करता है। से फॉर एग्जांपल टीटी और फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट वो क्या करते हैं, वहाँ पे बैचेस एग्जीक्यूशन में वहाँ पे खड़े रहेंगे। वहाँ पे उनको जो प्रोडक्शन वाले बंदे रहेंगे उनको उनको गाइड करेंगे कि हमें ये बैच ऐसा लेने का है, वैसे लेने का है, या फिर जो भी इक्विपमेंट्स है
हमें पैरामीटर ऐसे, वहाँ पे डीएमआर वगैरह तो रहेंगे, बट जो भी सैम्पलिंग वगैरह वहाँ पे करते हैं तो इनके रेफरेंस में या फिर इनके प्रेजेंस में वो सब सैम्पलिंग वगैरह किया जाता है। तो वो जो भी सैंपल्स निकलेंगे वहाँ पे, तो एक तो अपना आइडियल टीम वहाँ पे एनालिसिस करेगा, या फिर अपना क्यूसी टीम एनालिसिस करेगा, मतलब जहाँ पे जो भी एसओपीज है तो उसके हिसाब से वो एनालिसिस करते हैं। तो ये सैंपल विड्रॉल करते टाइम अपना क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के जो भी पर्सनल्स रहते हैं, वो वहाँ पे सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, या फिर बैच एग्जीक्यूशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे, तो वो सब कलेक्टिवली चेक करते हैं। उनका उनका एक चेकलिस्ट रहता है क्यूए डिपार्टमेंट का, तो वो क्यूए डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट वो लाइन क्लियर्स वगैरह देते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बैचेस। एंड वो एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो भी सैंपल्स वगैरह निकलते हैं, तो वो खुद वहाँ पे प्रेजेंस रह के टीटी टीम के साथ या एफएनडी टीम के साथ, इट इज फॉर एग्जिबिट एंड स्केलर बैचेस, कमर्शियल के लिए वो खुद मतलब वो सैम्पलिंग अगर होता है तो वो सिर्फ क्यूए वाले करते हैं, इसमें आर एन डी पर्सन या टीटी पर्सन इन्वॉल्व नहीं रहता है। ठीक है, तो ये, तो आफ्टर दैट जो भी डाटा आता है, तो उसका हम डॉक्यूमेंट्स अपना टीटी टीम वगैरह बनाता है। नेक्स्ट है। हाँ, तो बायोकेमिकल स्टडी, तो बायोकेमिकल स्टडी में ऐसा होता है कि हाँ, बायोकेमिकल स्टडी मतलब क्या होता है कि आपका इन्वर्टर के साथ हम अपना इन हाउस फॉर्मेशन जो हमने डेवलप किया है तो उसको कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली कंपेरिजन करने के पहले यहाँ पे प्रोटोकॉल्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो कि हमारा पीकेपीडी मतलब क्लिनिकल डिपार्टमेंट जो है अपने यहाँ पे आर एंड डी में जो होता है, अभी यहाँ पे उनका रोल प्ले होता है। वो लोग क्या करते हैं कि एक प्रोटोकॉल वगैरह बनाते हैं लिटरेचर सर्वे के बेसिस पे, इनोवेटर ने जो भी डिजाइन लिया है फॉर द क्लिनिकल मतलब बायोकेमिकल स्टडी, वो वगैरह अदर सीआरओ जो रहती है, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ये स्टडी कंडक्ट की जाती है, वहाँ पे उनको ये प्रोटोकॉल वगैरह शेयर करेंगे। उनकी कॉस्टिंग वगैरह जो भी है, या फिर जितने सैम्पलिंग पॉइंट्स आपको निकालने हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करके वो एक प्रोटोकॉल फाइनल होता है यहाँ पे। और ये होने के बाद मतलब एक फास्टिंग कंडीशन रहती है, फेड कंडीशन रहती है बायो स्टडी में। फास्टिंग कंडीशन इन द सेंस हम क्या बोलते हैं, अ, खाना मतलब खाना नहीं खाने का वो टाइम पे वो फास्टिंग कंडीशन होता है, और खाना खाने के बाद वो आपका फेड कंडीशन होता है। तो जिसकी भी बाय रिकमेंडेशन मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से वो फास्टिंग एंड फेड कंडीशन की स्टडी कंडक्ट की जाती है। एंड वहाँ पे जो भी टाइम पॉइंट्स है उसके हिसाब से वो ब्लड सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के हिसाब से। एंड दैट ब्लड सैंपल्स वो एनालाइज करता है वहाँ का क्लिनिकल टीम, मतलब जो भी सीआरओ के जो बंदे हैं वो लोग वो वहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करते टाइम जो हमने देखा होगा बीफार्म फाइनल ईयर के बंदे या फिर एमफार्म के ये जो बच्चे लोग हैं, उन्होंने देखा होगा एरिया अंडर कवर करके रहता है अपना। तो एयूसी, तो एयूसी हमने अगर वहां पे देखा है तो उसमें आपका सी मैक्स एंड एरिया एयूसी जीरो टू इंफिनिटी एंड एयूसी जीरो टू टी, ये टाइम पॉइंट, ये मतलब फैक्टर्स ये या फिर ये पैरामीटर्स हम वहाँ पे चेक करते हैं। तो उसका पासिंग का क्राइटेरिया ऐसा रहता है कि ऑल दिस पैरामीटर शुड बी मस्ट बी विद इन दी 80 टू 125, ये रेंज में रहना चाहिए, और आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल मोर देन 90% रहना चाहिए फॉर दी पासिंग पर्पस। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोइक्विवेलेंस स्टडी। यहाँ पे पीकेपीडी का अभी हमने एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि पीकेपीडी का क्या रोल है, या फिर क्लिनिकल डेवलपमेंट क्लिनिकल डिपार्टमेंट का भी क्या रोल है। ठीक है, नेक्स्ट है। देन अभी पीडीआर प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट, हम जो फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट होते हैं वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इनिशियल से हमने प्रोक्योरमेंट कैसे किया, क्या किया, जो भी है, इनोवेटर कौन था, क्या था, ये सब चीजें हम क्या करते हैं, कंपाइल डाटा कंपाइल बनाते हैं, मतलब जो भी हमने ट्रायल्स लिए, प्रोडक्ट कैसा डेवलप किया, जो भी ऑप्टिमाइजेशन ट्रायल्स लिए या फिर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन किया, जो फिर फॉर्मेशन ऑप्टिमाइजेशन किया, जो भी है, ये सब चीजें हम एक पर्टिकुलर रिपोर्ट उसका बनाते हैं, उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसमें उसको हम समराइज करते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट बनाता है। देन आफ्टर अभी जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, मतलब जो भी रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स है, तो ये अपना रेगुलेटरी टीम रहता है यहाँ पे, रेगुलेटरी अफेयर्स करके। तो उसमें वो रेगुलेटरी टीम को हम ये सब डाटा उनको देते हैं, वो उनके स्पेसिफिक फॉर्मेट रहता है। फॉर एग्जांपल ईसीटीटी, मतलब अगर यूएस मार्केट में कर रहे हैं तो ईसीटीटी
फॉर्मेट रहता है, तो उसमें वो ये सब डाटा फीड करके दैट पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी को सबमिट करेंगे। और सबमिशन के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जैसे कि आपका प्रोडक्ट वगैरह वो सब रेफरेंस के साथ मैच होना चाहिए, या फिर जो भी चीजें, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अपना रेगुलेटरी अफेयर्स सबमिट करता है। तो जो भी फाइलिंग का काम रहता है यहाँ पे रेगुलेटरी अफेयर्स अपना करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। देन अभी सबमिट तो कर दिया, ठीक है। सबमिट करने के बाद अप्रूवल कैसे मिलता है? तो जो भी डाटा हमने सबमिट किए या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपने रेगुलेटरी बॉडीज को सबमिट किए, तो वो क्या करती है, थरोली रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद अपने यहाँ पे इंस्पेक्शन होता है प्लांट पे, जहाँ पे हमने मतलब जीएमपी एरिया में जहाँ पे हमने बैच लिया है, वहाँ पे वो इंस्पेक्ट करते हैं ये सब चीजें कि इन्होंने प्रॉपरली प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे बैचेज जो लिए है वो जीएमपी एरिया में ली है नहीं है, जो भी है उनका उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सब इंस्पेक्शन वगैरह होता है। उसके बाद में अगर उनको लगता है कि हाँ ठीक है, इन्होंने ठीक से मतलब यहाँ पे अंडर जीएमपी, अंडर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस के अंडर प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे बनाया है, ठीक है, तो उनको बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स एंड बेस्ड ऑन द डाटा विच हैज बीन सबमिटेड बाय आवर रेगुलेटरी टीम, उसके बेसिस पे उनको अप्रूवल मिलता है। मतलब एक प्रोडक्ट को अप्रूवल मिल जाता है पर्टिकुलर मार्केट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अभी आपको अप्रूवल मिल गया, तो अप्रूवल मिलने के बाद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो कमर्शियल बैचेस, अभी कमर्शियल बैचेस जो भी होती हैं वहाँ पे अपना जो प्रोडक्शन टीम रहता है, तो वो लोग यहाँ पे वो बैचेस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जनरली आफ्टर अप्रूवल हम 3 वैलिडेशन बैचेस लेते हैं, ठीक है। तो वो वैलिडेशन वगैरह बैचेस या फिर जो प्रोटोकॉल्स वगैरह रहते हैं या फिर जो भी एग्जीक्यूशन है, वहाँ पे हमारा प्रोडक्शन टीम वो बैच एग्जीक्यूट करता है इन प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, एंड सेम sample has been analyzed by our quality control team, and that after the release वो पैकेजिंग का जो डिपार्टमेंट है वो पैकेजिंग करता है उसको, ठीक है। तो ये आफ्टर द अप्रूवल ये कमर्शियल एग्जीक्यूशन है। अगर आपके अप्रूवल होने के बाद भी अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह होते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, तो मॉडिफिकेशन वगैरह होते हैं, से फॉर एग्जांपल आपके कंपोजिशन में, नेक्स्ट, हाँ, अगर कंपोजिशन में कुछ चेंजेस है तो वो चेंजेस चेंजेस करने के बाद सेम वैलिडेशन या फिर रिवैलिडेशन बैचेस लिए जाते हैं। उसमें रिवैलिडेशन में अगर फॉर्मूला कंपोजिशन में कुछ चेंजेस होता है या फिर प्रोसेस में कुछ चेंजेस होता है या फिर माइनर चेंजेस है, तो वो अंडर द सोपैक गाइडेंस वगैरह हम करते हैं एंड रीवैलिडेट करके उसको कमर्शियलाइज करते हैं। तो जनरली हमने यहाँ पे मतलब मैंने ट्राई किया मैक्सिमम कि हर एक डिपार्टमेंट का रोल यहाँ पे समझाने का, एंड फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट या फिर ड्रग प्रोडक्ट कैसे डेवलप होता है एंड वो कैसे अप्रूवल होता है, कमर्शियलाइज कैसे होता है, यहाँ पे एक जनरल अपन ने ओवरव्यू कर लिया है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू देशमुख सर, पोपट सर, आडाव सर, ठेंगे सर, महेश सर, बाबुलकर सर, गोरे सर, थैंक्स फॉर दी मुझे इनवाइट करने के लिए और यहाँ पे एज ए स्पीकर मुझे चांस देने के लिए, और बताने के लिए कि R&D में वर्क कैसा होता है, क्या होता है, या फिर रिस्पेक्टिव जो भी मैंने आपको बताया। यस सर, थैंक यू सो मच सर, आपका वैल्यूएबल टाइम हमें मिला। एंड हमने ये जो सेशन है ये थोड़ा सा रीशेड्यूल किया था, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी टू द ऑल द पार्टिसिपेंट, बट वी आर वेरी थैंकफुल टू द ईश्वर राउत sir who guided our student regarding the R&D F&D in the deep way. As a institutional student, they are not that much aware about what exactly working done in the R&D department or F&D. But after your lecture, there some ideas are get clear, so it will definitely helpful for them to choose their path. Sir, we have some questions that the freshers will get the exact entry in the F&D or R&D directly, or they have to work for other department afterward they will get promoted, or they can No, no, choose no, the department. no, 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 no. Freshers can get the entry into the formulation development फिर analytical development department as per their qualifications. Say for example, if that candidate is having AMFA in Sutex, so definitely he will get the entry into the formulation development. Yeah,
एनालिटिकल डेवलपमेंट में भी वो बंदा जा सकता है, क्योंकि हमने वो बीफार्म में सब एक्टिविटीज किए हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि सुटिक्स का बंदा है तो वो फॉर्मुलेशन में ही काम करेगा। अगर उसका इंटरेस्ट है एनालिटिकल डेवलपमेंट में तो वो जा सकता है, नो इशू। ठीक है। और फ्रेशर लोगों को एंट्री मिलती है, बट अभी कैसा है कि अगर कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि फ्रेशर को लेना है तो डेफिनेटली उनको मिल जाएगी। अगर वहाँ पे एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया अगर आता है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस के बंदे ही लेंगे। बट जनरली होता है, फ्रेशर लोगों को एंट्री मिलती है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, डेफिनेटली मिलेगा ही। Yes, sir. This activity is in the collaboration with the TNP and the Alumni Association. You are also our alumni. So in future also we yes. require some kind of guest lecture from you, and also the reference for our students. So we are in touch with you, sir. Yes, sir. Thank you. So on the And I behalf will be of available. Dr. Rajendra Gowda College of Pharmacy, Alumni Association and Training and Placement Cell, I definitely thankful for you, and we will also do some these kind of lecture series in the offline. So we invite you in Definitely. that time. So please spare your time for this. Thank you so much, sir. Definitely. Thank you. Thank you, sir. Dear participant, we will post the feedback link in this chat book and also in the WhatsApp group. So complete your feedback. Unless and until you complete your feedback, you cannot get a certification. Oh, but sir, if anyone having queries with respect to this class, then they can text me, or they can share the questions, or they can Yes, sir. Yes, share sir. their. In the webinar group, if they will share the questions with me, I will definitely share with you and reply to their queries. I will try to reply to. Yes, sir. Yes, sir. Definitely. Sir. Definitely. Thank you. Yes. Thank you so much, sir. So I'm leaving that. Yes. We will start our next session in the 2 minutes. Everyone will be in the meeting, please. Don't leave today. We will continue the session immediately.